Every artist को रोज मारा जाता है. I mean, many artists die through words. आप लिख के जाते हैं और हम मरते हैं. आपको क्रिटिसाइज करने वाला कौन है? कोई नहीं है. पास है. बहुत 2007 से मैं सोच रहा हूँ कैसे इसको रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट कैसे करूँ. शुक्र है ये सच नहीं है ये फिल्म. अगर सच होता तो बहुत भयानक सच होता. कभी कभी हम बोलते हैं बकवास करना है क्या है. उन्होंने दो घंटा मेहनत करके बनाया है. कोई हम कैसे बोलते हैं बकवास. क्या होता है जो मेहनत करता है. Yeah, I mean this movie is an ode to the artist in Gurga. I think he was one of the most sensitive artists of our industry, and he was a great filmmaker whose last film, Kagaz Ke Pool, which today we call a classic, at that point of time was very heavily criticized. It didn't do well. He never made a film after that. It's an ode to that kind of sensitivity. I mean, it does affect you because you put in sincere, honest work, at least I do, into my films, and you genuinely want to do good work. You genuinely want to prove to the audience that you have put your heart into this character. But there is criticism, but a lot of the times it is constructive. Some are personal, but I feel like those are people with their own agenda, some whatever it is. But there are days when it's hurtful. There are days when it affects you. But like any of us, we can't dwell on it for too long. We all keep moving forward. And I think the best way to keep them quiet is to just keep working hard. And if your movies and new roles that you do will hopefully keep impressing a different set of people. And yeah. मास्क है. अच्छा, ये एंटी क्रिटिक फिल्म नहीं है. ये एक ऐसा फिल्म है जो हमारी सोच में क्या गलती है, या क्या सही है, दोनों तरफ से. इंडस्ट्री की वजह से, या मैं आर्टिस्ट हूँ मेरी तरफ से, और क्रिटिक जो आप हैं आपकी तरफ से. क्या गलती है, क्यों झगड़ा होता है, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, क्यों ऐसा होता है. सेकंड है ये मांस का शब्द आज तक मैं समझा नहीं. हम सब मांस हैं. हम सब वही खाते हैं, हम सब वही देखते हैं, हम सब वही पसंद करते हैं. मास का मतलब ये नहीं 4 गाना होना चाहिए और 4 फाइट होना चाहिए, या हीरो हीरोइन ऐसा करना चाहिए. कुछ वैसा मास का रूल्स नहीं है. आज सिनेमा का हर रूल तोड़ा जा रहा है. और हमको भी ये नहीं है कि हम आर्ट फिल्म बना रहे हैं या कुछ मीनिंगफुल फिल्म बना रहे हैं. सब फिल्म मीनिंगफुल होना चाहिए. पर एंटरटेनमेंट का मतलब एक चीज नहीं हो सकता है. एंटरटेनमेंट होना चाहिए, हर फिल्म में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मजा होना चाहिए. पर वो मजा अलग तरह की मजा हो सकता है. हमने डिफाइन किया है मास फिल्म ऐसा होना चाहिए, या एक्शन होना चाहिए, बड़ा सेट्स होना चाहिए, या पीरियड फिल्म होना चाहिए, बड़ा खर्चा होना चाहिए, बहुत वीएफएक्स होना चाहिए. वैसे कुछ नहीं. सोच भी मास हो सकता है. कभी सिंपल सोच भी मास हो सकता है. और ऐसा ही एक पिक्चर है. One thing that I want to know from our Balki sir was, when we see the logo of the film, there are stars, that's blood coming down or something. So for this film, when the film will release and the critics will for sure give the ratings, so will the ratings will matter to you? The stars will matter or not? What would matter if they're honest about the film. If they're honest about the film and if they critique it, not critique. When you say there's a critiquing, it's about analyzing the film, what's right, what's wrong about it. That would be far more healthier for me. It would be wrong to say, I wouldn't care whether they give stars or not. Of course it matters. Of course we're all sensitive people. But am I going to spend sleepless nights over it? No, I'm not going to. But does good reviews and good critics and good opinions of people about anything that we all do matter? Of course it matters. We all hope that people like it. We all hope people write kindly. But I'm not going to be here saying I'm scared. What this thing? That's not the way. You can't be scared in a creative profession. You have to kind of put it out there. And all of us have to be objective about a story that's being told. Like when we tell a story about cops, for example, we show so many corrupt cops. We're not scared that the cops will come and shut down the theater. No? We can't live like that. Or if we should do a film on politicians,
we're not scared that politicians are going to get angry and shut ourselves up. And we all kind of champion people who take on the system, saying, "Arey, fantastic, how bold the filmmaking is." But when it comes to us, when we talk about us, we have a problem. Are you scared? Are you scared? We kind of, let's talk about ourselves first before attacking the rest of the system. So do you think that after the release of the film, this movie is something that will make the audience stick to the cinema and making comeback for the theatres? I don't know whether this movie or any movie. I think any movie which is interesting will bring audiences back to the theatre. I think audiences are coming to the theatre. It's not like they are, you have to bring them back to the theatre. But it's just about not bringing them there and cheating them of an experience. I just hope if more films come out, as many films come out, which actually give the audience a good time. They just want a good time. They just want to be engaged with what they're seeing and be entertained with what they're seeing. तो सीरियल किलर का साइको भी तो समझना होगा क्या है उसका, तो ये सब आइडिया आया कहाँ से, आपको कैसे आपने डेवलप किया इसको? आज तक किसी को पता नहीं है कि कहाँ से आइडिया आता है, वो गिरता है और हम लिखते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे आइडियाज आते हैं, पर हम सबको फिल्म में नहीं बदलते हैं, क्योंकि आई ऑलवेज से दैट फिल्म मेकिंग इज वेरी लेबोरियस बिजनेस. सो देयरफॉर अगर आइडिया यूनिक हो तो एटलीस्ट इट्स वर्थ स्पेंडिंग दैट 2 years. बट आई टेल यू अबाउट दिस आइडिया. ये आइडिया मेरे को आपने बोला कि आपको सिक्योरिटी चाहिए या कुछ ऐसा. एवरी आर्टिस्ट को रोज मारा जाता है. आई मीन मेनी आर्टिस्ट डाई थ्रू वर्ड्स. Killing does not mean you need a weapon. You can kill with words. With words you can finish a person. With words you can kind of, completely, end his life or her life. So I've always believed in the sensitivity of this thing. When you can attack me, how do I not attack you? What is my view? अगर मेरे को अपील करना है, इस दिल्ली में सेशंस कोर्ट है, वहाँ फेल हुआ तो हाई कोर्ट जा सकता हूँ, वहाँ फेल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ. आप क्रिटिक्स है, अगर आपने बुरा बोला, आपका अकाउंटेबिलिटी क्या है? आपको रिव्यू देने वाला कौन है? आप लिख के जाते हैं और हम मरते हैं. आपको क्रिटिसाइज करने वाला कौन है? कोई नहीं है. सो दैट्स द ब्यूटी. आई ऑलवेज फाउंड दैट फैसिनेटिंग. पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरा पहला फिल्म जो मैंने सोचा अच्छा फिल्म बनाया मैंने, पर एक मेरा पहला रिव्यू, उस टाइम में बहुत मशहूर क्रिटिक थे वो, पहला रिव्यू पढ़ा, बहुत बुरी तरह मारा मुझे, और वहाँ से बहुत डिप्रेस हो गया. आज तक वो डिप्रेशन से रिकवर नहीं हुआ मैं. पर वहाँ से आया. बहुत 2007 से मैं सोच रहा हूँ कैसे इसको रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट कैसे करूँ. तो मजा. इट्स अ फन फिल्म एक्चुअली. इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस स्टफ. बट मेरे को एक बात है, अगर आप आपका क्रिटिक कौन है? आप भी काम करते हैं, आप मतलब आप नहीं, सब लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं उनका भी एक ड्यूटी होता है. उनका रिव्यू करने वाला कौन है? क्योंकि हमारा लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पावर समझते हैं. ये पावर नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है. इसीलिए मुझे लगा कि ये फिल्म बनाना चाहिए. अभी फिल्म देखने के बाद कहते हैं कि सोच बदलती है, तो इससे क्या थोड़ी सी रिव्यू के तौर पे की सोच बदलेगी कि क्योंकि एक फिल्म कितनी सच्चाई दिखेगी इस फिल्म. शुक्र है ये सच नहीं है ये फिल्म. अगर सच होता तो बहुत भयानक सच होता ये कहानी. पर ये क्या है, ये फिल्म क्रिटिक, इट्स नॉट अबाउट, ये फिल्म रिव्यूज के बारे में नहीं है, सिर्फ फिल्म क्रिटिक्स के बारे में नहीं. जो भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, अगर हम आज रेस्टोरेंट जाते हैं, हम रेट करते हैं. अगर घर में भी कोई खाना बनाता है, बनाती है, कोई जो भी हम खाते हैं उसको, अगर क्या बोलते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं बकवास खाना है. क्या है? उन्होंने 2 घंटा मेहनत करके बनाया है. कोई हम कैसे बोलते हैं बकवास? क्या होता है जो मेहनत करता है, तो करती है, जो क्या होता है उनके दिल में. तो वो क्रिटिसिज्म हम करते हैं ना, हम क्या समझते हैं अपने आप को, क्या राइट दिया गया हमको ऐसे बोलने का? किसी का मेहनत का ऐसा उड़ाने का क्या कौन दिया हमको राइट? वो बात मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा. और इसके बाद कोई इन्फ्लुएंस होगा, बदलाव होगा, पता नहीं, पर बदलाव तो होना चाहिए. नॉट जस्ट अबाउट फिल्म क्रिटिसिज्म और रिव्यूज, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक एग्जाम्पल है, बस उतना ही. पर जब भी हम रेटिंग देते हैं किसी उबर ड्राइवर को
या रेस्टोरेंट को या घर में कुछ बोलते हैं या किसी को भी अगर हम रेटिंग करते हैं, हम समझते हैं आज सडनली हमको हमारे पास पावर आ गया क्योंकि सोशल मीडिया है, हमारे पास पावर आ गया। इसको हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लें क्योंकि उनका लाइफ भी उस पर रेटिंग पे डिपेंड करता है, उसका तनख्वाह या उसका प्रमोशन भी हमारा रेटिंग पे डिपेंड करता है, वो भी हमको सोचना है नेक्स्ट टाइम। उतना ही ट्रेलर के कमेंट्स और रिव्यूज मैंने पढ़ा, लाइक एवरीबडी फील्स दिस इज वेरी यूनिक, इवन माय फ्रेंड्स इन मलयालम, माय डायरेक्टर्स इन मलयालम, माय राइटर्स इन मलयालम, they are like this is such a terrific idea, none of us thought of this. So I think that is what for me was instantly what I loved about the script. But also working with Balki sir for me is a dream come true. It's not something I ever imagined happening. So जब वो call आया था, like instantly वो एक excitement था, and I think the film, the script being so interesting was like a double bonus for me. So it's a no-brainer for me to be a part of it. Thank you